کوشش کے باوجود کبھی ایک طالب علم کی حیثیت سے کسی یونیورسٹی کی سیڑھیاں نہیں چڑھی ہیں، یہاں آپ سے گفتگو کرنے اور اپنے تجربات بیان کرنے کا موقع ایک اعزاز کی بات ہے میرے لیے. شکریہ مانو آپ تمام. میرا تعارف تو ہو چکا ہے، بلکہ توقع سے زیادہ ہو چکا ہے. اب میرے بارے میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا کہ ہے. ہم نے اس نشست کا موضوع طے کیا ہے ادارت اور ترجمہ، یعنی ایڈیٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن. شاید یہ میرے لیے سب سے بہتر موضوع ہے کیونکہ میں گزشتہ 18 سال سے عملاً یہی کرتا رہا ہوں. میر انیس کا شعر آپ اچھی طرح واقف ہوں گے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاح کی، اور میں اپنی پوری زندگی عملاً یہی کرتا رہا. میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے میں کافی تقاریر کی ہیں جس کے گواہ میرے سروری صاحب بھی ہیں، کیونکہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو وہ کسی اور کالج سے نمائندگی کرتے تھے اور میں آتا تھا. لیکن میں آپ سے یہاں پر کوئی خطاب نہیں کروں گا، بلکہ میں گفتگو کرنا پسند کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی مجھ سے باتیں کریں گے اور یہ ایک دلچسپ انٹریکشن ثابت ہوگا. جیسا کہ میرے تعارف میں کہا گیا ہے میں ایک نیوز ایڈیٹر ہوں. میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ ایک نیوز ایڈیٹر کی حیثیت سے میرا کام کیا ہوتا ہے. نیوز ایڈیٹر وہ شخص ہوتا ہے جو اخبار کی منصوبہ بندی اور اس کی صورت گری کرتا ہے. وہ اخبار کو شکل بھی وہی دیتا ہے اور اس میں روح بھی وہی پھونکتا ہے. اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ رپورٹرز، فوٹوگرافرز، نمائندوں اور مختلف ذرائع، انٹرنیٹ، نیوز ایجنسیوں اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے ذریعے خبروں اور تصاویر کی فراہمی کو یقینی بنائے اور منتخب مواد کو اپنے سب ایڈیٹرز یعنی اس کے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کی مدد سے حسب ضرورت ایڈیٹنگ اور ترجمے کے بعد دستیاب جگہ میں اخبار کی پالیسی کے دائرے میں رہ کر اس مواد کو اور تصویروں کو اور خبروں کو پیش کرے. میں نے یہاں منتخب مواد کا لفظ استعمال کیا ہے. منتخب یعنی چنندہ یا سلیکٹو. کوئی بتا سکتا ہے کہ میں نے منتخب مواد کیوں کہا ہے؟ کوئی اینی آئیڈیا؟ سر کوئی نہ کوئی ایونٹ، بہت سارے ایونٹس ہوتے ہیں. جو ایونٹ ہوتا ہے جو مطلب عوام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کو لیا جاتا ہے، جس میں عوام زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی ہے. جی تو اس لیے وہ منتخب کیا جاتا ہے. بہت خوب بہت خوب. ایک اور کوئی اور وجہ؟ گیٹ کیپنگ. بہت سارے مواد ہمارے پاس ہوتا ہے جی تو اس میں سے کچھ ہم گیٹ کیپ کر دیتے ہیں. جی جی کچھ رہ جاتا ہے تو گیٹ کیپنگ کی ذریعے. جی بالکل صحیح ہے. اور یعنی ہمارے اخبار کی پالیسی کو بھی محفوظ رکھنا پڑتا ہے. آپ جس جگہ کے لیے کام کرتے ہیں، جس انتظامیہ کے لیے کام کرتے ہیں، اس کی پالیسی اور اپنے ٹارگٹ آڈینس کی جو دلچسپی ہے اور ایسے دوسرے عوامل ہوتے ہیں، اور ہم ہر خبر کو اخبار میں جگہ نہیں دے سکتے. ایک دور تھا جب ہر سرفراز شخص یا جو سماج میں تبدیلی لانا چاہتا تھا یا سماج کی ناہمواریوں کو، زیادتیوں کو دور کرنا چاہتا تھا، وہ اخبار نکال رہا تھا. یعنی کوئی اٹ واز ناٹ اے بگ ڈیل دین. کوئی بھی مولانا ابوالکلام آزاد ہوئے اور کئی ایسے شخصیات گزری ہیں کہ وہ اخبار نکال لیتے تھے اور اس وقت کوئی مسئلہ نہیں تھا. انگریز انہیں روکتے تھے کہ وہ کسی دوسرے اخبار سے اخبار نکال لیتے تھے. لیکن آج ایسا نہیں ہو سکتا. اخبار ایک بہت بڑی انڈسٹری بن گیا ہے. یعنی اٹ از ناٹ اے چائلڈس پلے. کوئی سوچ نہیں سکتا میں آپ ایک بڑی انڈسٹری ہے اور ایک عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہی نہیں، بلکہ یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے کی اجارہ داری ہو گئی ہے اس میں، اور یہ ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں کارپوریٹ سیکٹرز اور میڈیا اور پالیٹکس. یعنی ہر اخبار یا ہر میڈیا ہاؤس کے آج کل ایک کچھ مفادات ہیں. یعنی کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے بدقسمتی سے. ہر ادارے کا کسی نہ کسی جانب جھکاؤ ہے، چاہے وہ اردو میڈیا ہو، تیلگو ہو یا انگریزی ہو. ہر ایک کا حال یہی ہے. حال ہی میں ایک فلم آئی تھی، اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو فلم مانجھی، آپ نے سے دیکھی؟ اس میں ایک جرنلسٹ کا کردار ہے. دیکھیے آپ لوگ، اس میں ایک ڈائلاگ ہے، اس کا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ کوئی کہنا چاہے؟ یعنی اس میں وہ یعنی کہتا ہے کہ وہ تو اس کا کیریکٹر میں جرنلسٹ ہی کیریکٹر کی بات ہے. یعنی سچے پترکار بننے کے لیے آئے تھے لیکن نیتاؤں کے دلے بن گئے. تو آج کل تقریباً یہی کچھ صورتحال ہے. خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہے خبریں کہاں سے آتی ہیں؟ اخبار والوں کو خبریں کہاں سے ملتی ہیں؟
सोसाइटी जी से समाज से माशरे से। ओके, वो कौन देता है हमको खबरें? या ठीक है, मैं अखबार के दफ्तर में, मैंने कहा कि मैं न्यूज़ एडिटर हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, अब मुझे अखबार निकालना है, मेरे पास काफ़ी प्रिंट यानी न्यूज़ प्रिंट पड़ा हुआ है, अब छापना है दूसरे दिन, तो कहाँ से आएंगे, क्या मवाद आएगा उसका? न्यूज़, वेरी गुड न्यूज़ एजेंसी एक सोर्स है। सॉरी, पुलिस स्टेशन से हाँ, पुलिस स्टेशन से भी आते हैं। जी हॉस्पिटल से भी जी हाँ फ्रेंड्स सब लोग जो रहता है उससे भी आते हैं। अच्छा, पॉलिटिक्स पे भी आते हैं। जी प्रेस नोट भी आता है जी, वेरी गुड राइट। और यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, एजुकेशन न्यूज़ से। हाँ, प्रेस नोट्स वगैरह आते हैं। अब बहरहाल काफ़ी अच्छी नॉलेज आप लोगों को है कि खबरें कहाँ से आती हैं। बुनियादी तौर पर रिपोर्टर्स से आते हैं, जो अखबार के नुमाइंदे होते हैं, रिपोर्टर्स, और न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, PTI, UNI, AFP, DPA, ऐसी कई न्यूज़ एजेंसीज होती हैं, वहाँ से आती हैं, और टेलीविज़न से भी आती हैं। आजकल जो है हम देखते हैं, और इससे पहले कि न्यूज़ एजेंसी से खबर आए, हम कई मरतबा ऐसा होता है कि टेलीविज़न पर देखकर खबरें बना लेते हैं या अंदाज़े कायम कर लेते हैं। और वेबसाइट बहुत बड़ा सोर्स है आजकल, कई दूसरे अखबारात और न्यूज़ एजेंसीज की वेबसाइट्स होती हैं। ये कुछ ज़राए हैं जिनसे खबरें हासिल होती हैं, और खबरें हासिल करने का सबसे अहम जरिया होता है टेलीप्रिंटर। आप लोगों में से कितने लोग टेलीप्रिंटर से वाकिफ हैं? जी, क्या होता है टेलीप्रिंटर, को बता सकते हैं? जी, मैं ये कुछ खबरें लाया था, आप लोग इसे इस तरह से फाड़ सकते हैं, और ये जो है रॉ मटेरियल है अखबार का या चैनल का, यानी हर अखबार यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सियासत इसी में छुपा हुआ है, एतमाद इसी में छुपा हुआ है, क्रॉनिकल इसी में छुपा हुआ है। पहले ये रॉ मटेरियल, इसकी बुनियाद पर खबरें होती है, कल की खबरें हैं, ये आप लोग इस तरह से फाड़ के एक आइडिया के लिए कि इस तरह की खबरें आती है अखबार में। ये है टेलीप्रिंटर। तो आप बताएं, कोई तारुफ अगर कराना चाहे टेलीप्रिंटर का, तो आप में से दैट इज टेलीप्रॉम्प्टर। वो ये टेलीप्रॉम्प्टर अलग है, जो न्यूज़ रीडर देखता है और कैमरे में उसे उसकी स्क्रिप्ट नजर आती है, वो टीवी टेलीप्रॉम्प्टर होता है। ये टेलीप्रिंटर होता है, जैसे कि प्रिंट करने वाला। एजेंसी से न्यूज़ आती है जी, एजेंसी से न्यूज़ आती है, जिसके जो डायरेक्ट जो ऑफिस में लगा होता है, उसमें कंटिन्यू न्यूज़ आती रहती है, जैसे FP से या यूजर से कोई भी चीज़ जाएगी तो उसके लिए न्यूज़ आती है। यानी खबरें आने की जो मशीन होती है, और वो छपती है, छपकर यानी कंप्यूटर से क्लब कर दिया जाता है। यानी हर अखबार के दफ्तर में और न्यूज़ चैनल के और मीडिया के और कई जगह जिनका कोई मफाद होता है, पास सियासी लीडर्स के मकानात पर भी टेलीप्रिंटर्स लगे हुए थे, और स्टॉक मार्केट्स वगैरह में भी टेलीप्रिंटर्स लगे हुए थे। मुख्तसरन अगर मैं कहूँ तो टेलीप्रिंटर मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियों की खबरें पहुँचाने वाली मशीन है। यानी टेलीप्रिंटर पर हर रोज 24 घंटे में बेशुमार खबरें आती रहती हैं, मुसलसल बचता ही रहता है। इतनी खबरें आती हैं कि अगर इन तमाम खबरों को अखबार में मिनिमम छाप दिया जाए तो 1000 सफ़ात का अखबार भी काफी नहीं होता। अगर हम 1000 सफ़ात का अखबार छापेंगे तो क्या होगा? कोई पढ़ सकता है और कोई छाप सकता है? अगर छापें तो क्या होगा? 1000 सफ़ात का जो टाइमलाइन है अखबार की। हाँ हाँ, वेरी गुड जी जी, वेरी गुड जी। और एक अहम जो इसके असरात हो सकते हैं कि अखबार के मालिक का दिवालिया निकल सकता है, क्योंकि न्यूज़ प्रिंट काफ़ी महंगी चीज़ है, और अगर हम 1000 सफ़ात का अखबार छापें तो वो माली मसाइल से दो चार हो जाएगा, तो उसे दिवालिया होने से बचाने के लिए भी एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर एडिटिंग क्या है इस बारे में और एडिटिंग के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में अब गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले फिलहाल एक न्यूज़ एडिटर की हैसियत से क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं, और एक न्यूज़ एडिटर से क्या तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, और उससे किन बातों का तकाज़ा किया जाता है, यानी पेशे से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसकी बात करेंगे। एक न्यूज़ एडिटर को समाज का नवाज होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरियात हैं, उनके क्या मसाइल हैं,
اور وہ کن موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کا جو آج کل محبوب منزلہ کیا ہے, کس بارے میں وہ بات کر رہے ہیں, اس کا اندازہ نیوز ایڈیٹر کو ہونا چاہیے تاکہ وہ صحیح خبریں اپنے ٹارگیٹ آڈینس تک پہنچا سکے. یہ سماج کی نبض جاننے والا نیوز ایڈیٹر ہی ایک ایسا اخبار یا پروڈکٹ سامنے لا سکتا ہے جس میں لوگوں کی دلچسپی کا سامان ہو. ایک اچھے نیوز ایڈیٹر کو بہت الرٹ رہنا پڑتا ہے. یعنی جب وہ دفتر میں ہوتا ہے تو اسے وقت پر ٹیلی پرنٹر پر نظر ڈالتے رہنی چاہیے کیونکہ مسلسل خبریں آتی رہتی ہیں. اچھا, میں اس ٹیلی پرنٹر کے بارے میں بتاؤں کہ آج کل جو ہے ٹیلی پرنٹر ایک کمپیوٹر سسٹم میں ایک سافٹ ویئر ہے, سوئفٹ نام ہے اس کا, تو اسے کلب کر دیا گیا ہے. مختلف نیوز ایجنسیوں کو اس سافٹ ویئر میں کلب کر دیا گیا ہے. پہلے کیا تھا کہ UNI کا ٹیلی پرنٹر الگ ہوتا تھا اور PTI کا الگ ہوتا تھا اور وہ مسلسل بجتے رہتا تھا, اخبار میں مسلسل شور ہوتے تھے. لیکن آج ایسا نہیں ہے کہ وہ آ جاتی ہیں اور آپ کے سسٹم میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور نیوز ایڈیٹر جاتا ہے اور اسے جو بھی خبر درکار ہے وہ سلیکٹ کر کے اس کا پرنٹ لیتا ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, مسلسل بچتے رہتے تھے. اور جو نیوز ایجنسیز ہے PTI اور UNI, یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ PTI کا فل فارم کیا ہے تو بتا سکتے ہیں؟ ویری گڈ. UNI گڈ. اب ان کی جو یہ دو یعنی نیم سرکاری ایجنسیز ہوتی ہیں, یعنی انہیں مرکز سے یعنی حکومت سے مدد بھی ملتی ہے اور اپنے وسائل بھی ان کے کچھ ہوتے ہیں. انہیں سبسکرپشن فی وہ جو اخبارات وغیرہ سے لیتے ہیں. اور ان کے جو ہے یعنی PTI کے کچھ ٹائی اپس بیرونی ایجنسیوں سے ہوتے ہیں. اب جیسے کہ پیرس پر حملہ ہوا, کیسا پتہ چلے گا, کیسی وہاں سے لمحے لمحے کی خبریں ہم تک پہنچیں گی, انہیں نیوز ایجنسیوں کے ذریعے پہنچیں گی. تو وہاں کی جو نیوز ایجنسیز ہے جیسے کہ AFP ہے, AP ہے, یہ PTI سے ان کا ٹائی اپ ہے. اور UNI کا ٹائی اپ کچھ نیوز ایجنسی سے, DPA ہے اور رائٹر ایک نیوز ایجنسی ہے, اس کا DPA سے ٹائی اپ ہے. تو ایک ہی سافٹ ویئر میں آج کل تمام خبریں ہم کو مل جاتی ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے ہر یعنی دو ہوتے تھے بنیادی طور پر, PTI کا ایک پرنٹر ہوتا تھا اور UNI کا. لیکن اب ایک سسٹم میں سب خبریں آ جاتی ہیں اور ہم کو ایٹ دی کلک آف ماؤس ہم جو ہے اسے نکال سکتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ نیوز ایڈیٹر سے کیا توقعات ہوتی ہیں اور اس کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. نیوز ایڈیٹر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے کانٹیکٹ بہت ہوں سماج میں. مجھے یہ بتانے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ میرے حلقے میں یعنی میں جن سے ملتا جلتا ہوں ان میں سماج کے ہر طبقے کا آدمی شامل ہے. یعنی میں جن لوگوں سے ملتا ہوں یا میری کسی سے دوستی یا راہ و رسم ہے ان میں ایک سٹا چلانے والے سے لے کر ایک IPS آفیسر تک شامل ہے. اور مجھے رکھنا پڑتا ہے تعلقات ان سے کیونکہ آپ کو خبریں سماج کے ہر طبقے سے مل سکتی ہیں. تو ایک دلچسپ واقعے کا میں یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ میں یعنی اس تمام گفتگو کے دوران میں کسی کا نام نہیں لوں گا, نہ اخبار کا نام لوں گا, لیکن کئی واقعات آپ کو سناؤں گا, میرے تجربات بیان کروں گا. اسی طرح میں اس واقعے میں بھی کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن ایک بہت ہی نوٹوریس کرمنل حیدرآباد میں تھا اور کافی پریشان کیا ہوا تھا وہ شخص, اور اس نے جو ہے شوٹ آؤٹ بھی کیے تھے حیدرآباد میں. تو اسے آخرکار پولیس نے پکڑ لیا. قانون کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں, بالی ووڈ کا ڈائلاگ ہے مشہور. بہرحال قانون کا ہاتھ جو ہے اس تک پہنچ گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کرمنل سے بھی میرے یعنی کہیں نہ کہیں میرا تعلق رہا تھا. یعنی میں جانتا تھا اس کو شخصی طور پر میرے حلقے میں, اور یعنی اس سے جس آفیسر نے پکڑا تھا, آفیسر تو نہیں ہے وہ, درمیانی درجے کا ایک پولیس عہدیدار ہے یا پولیس ملازم ہے, اس سے بھی میرے تعلقات ہیں. اتفاق ہے یہ کہ میں اس کو بھی جانتا تھا, اس کو بھی جانتا, لیکن دونوں کو نہیں پتا کہ دوسرا شخص جو ہے مجھے جانتا تھا. لیکن دونوں کا ورژن میں نے بعد میں سنا ہے. بہرحال میں نام جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نام دے دوں گا, لیکن ایسا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے تمام طبقات سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میرا ربط رہے. تو رپورٹرس یعنی اب آگے بڑھتے ہیں کہ نیوز ایڈیٹرس کی اور کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ رپورٹرس کو مسائل سمجھانا. رپورٹرس وہ ہوتے ہیں جو باہر سے خبریں لاتے ہیں, اور ہم جو ہے نیوز ایڈیٹرس کو ڈیسک جرنلسٹ کہلاتے ہیں. تو رپورٹرس کو مسائل سمجھانا یعنی کیا چل رہا ہے آج کل سماج میں, ان کی رہنمائی کرنا کہ کس طرح خبریں دیں, اور ایکسکلوزیو سٹوریز یعنی جو مخصوص, اب یہ جو خبریں ہیں ٹیلی پرنٹر کی وہ تو سب کے پاس آئے گا, لیکن جو ایکسکلوزیو ہوتی ہے, جو خاص آپ کے اخبار کی آپ کے چینل کی خبر ہوتی ہے, ویسی کوئی اسٹوری دینے کے لیے تحریک پیدا کرنا رپورٹرس کی. کیونکہ ڈیسک جرنلسٹ باہر فیلڈ پر جا کے خبریں نہیں لاتا ہے, جانا تو ہم رپورٹرس کو ہی ہے. ان میں تحریک پیدا کرنا اور انہیں راستہ بتانا, یہ بھی جو ہے نیوز ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایسا آپ اسی وقت کر سکتے ہیں
یعنی ایک نیوز ایڈیٹر رپورٹرز کی رہنمائی اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ خود مسائل سے واقف ہو کہ کیا چل رہا ہے اور کن مسائل کا عوام کو سامنا ہے اور فی الحال کون سی چیز ان کے سامنے پیش کرنی چاہیے. یہ اسی وقت بتا سکتا ہے جب وہ خود ان مسائل سے واقف ہو. جب آپ اخبار میں کام کرتے ہیں تو آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ سب جانتے ہیں. یعنی جو ہمارے دوست احباب جب ہم شادی بیاہ میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں بس لوگ حالات حاضرہ کے بارے میں پوچھتے ہیں ارے اس کا کیا ہوا اس کا کیا ہوا. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر اخبار والا جو ہے کوئی انتریامی ہو یعنی ہر چیز جانتا ہو, ایسا نہیں. ایک واقعہ میں بیان کرنا کہ میرے والد تھے, سروری صاحب واقف ہوں گے, صبغت اللہ بمباٹ ان کا نام تھا. میں جب ابتدا میں اخبار میں ملازم ہوا تھا تو بالکل ہم نئے نئے تھے, یعنی کوئی سود بد نہیں تھی زیادہ. اس وقت کوئی ایک ایشو چل رہا تھا, والکو ایک کمپنی تھی اور اس کا کچھ شیئرز کا مسئلہ مجھے یاد بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے پوچھا تھا, یعنی روز اخبار میں اس کی سرخیاں آ رہی تھی, تو جو ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. یہ میں 4-6 مہینے ہوا ہوگا اخبار میں جوائن ہو کر, لیکن میں بلینک تھا. یعنی میں جب ابتدا میں گیا تھا تو مجھے دی جاتی تھی چھوٹی موٹی خبریں دی جاتی تھی کہ کشمیر میں کچھ انکاؤنٹر ہوا, ایسی چھوٹی موٹی خبریں دی جاتی تھی. تو میں بالکل بلینک تھا اور میں کچھ جواب دینے کے موقف میں نہیں تھا. لیکن اس سے مجھے بہت شرمندگی ہوئی تھی میرے والد کے سامنے. اس کے بعد میں نے طے کیا تھا کہ نہیں, مجھے واقف رہنا چاہیے سماج, یعنی ایک اخبار میں کام کرنے والے کی حیثیت سے مجھے واقف ہونا چاہیے. تو اس کے بعد سے میں نے کوشش کی کہ میں یعنی زیادہ سے زیادہ ایشوز, اور خاص طور وہ ایشوز جو سماج میں موضوع بحث ہیں ان سے میں واقف ہوں. تو میں اس کے بعد میں نے عادت ڈالی کہ اس سے میں واقف ہوں اور کم از کم اخبار کی سرخیاں پڑھا کروں. اور کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور کیا توقعات اور تقاضے ہوتے ہیں نیوز ایڈیٹر کے. زبان پر عبور, جس زبان میں وہ کام کر رہا ہے, اب فی الحال ہم یہاں پر ٹارگیٹ لینگویج اردو کی حیثیت سے ٹریٹ کریں گے. زبان پر عبور اور اس کے شعر و ادب سے واقفیت, اور ملک اور دنیا کی, مختلف ملکوں کی اور تاریخ عالم اور یعنی دنیا کی تاریخ اور تہذیب کے بارے میں معلومات, جنرل نالج, عام معلومات, کھیل, فلمز اور ہر موضوع کی کچھ نہ کچھ سدھ بودھ اور کامن سینس میرے خیال میں ایک نیوز ایڈیٹر ہونے کے لیے شرط اول ہے. یعنی یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے. یعنی اگر ایسا نہ ہو, یعنی فرض کیجیے کہ ایک صحافی ہے یا ایک جرنلسٹ ہے, اگر اسے سب باتیں نہیں معلوم تو کیا ہوگا. ایسے بہت سارے اخبارات میں سب ایڈیٹرس ہیں. اگر آپ میں سے کسی نے کام کیا ہو اخبار میں تو واقف ہوگا کہ برانڈ بن جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ صرف جو ہے مذہبی خبریں کرتے ہیں, کچھ لوگ صرف سپورٹس کی خبریں کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر نیوز ایڈیٹر کو تو ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اسے تمام موضوعات سے واقفیت ہونی چاہیے, سیاست, تجارت, کھیل, سپورٹس وغیرہ. اور اگر ایسا نہ ہو اور کبھی اسے کچھ کام کرنا پڑ جائے, مثال کے طور پر میں, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن ایک واقعہ میں بتانا چاہوں گا کہ ایک ایسے ہی صاحب ہیں جو یعنی موضوعاتی جرنلسٹ سمجھیے آپ کہ وہ ہر موضوع کو نہیں جانتے. انہوں نے ایک ورلڈ کپ فٹ بال ہو رہا تھا تو انگریزی میں خبر آئی ٹیلی پرنٹر سے اسی طرح کی, تو جو ہے انہوں نے ہارنے والی ٹیم کو جتا دیا اور جیتنے والی ٹیم کو ہرا دیا, کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ سے واقف نہیں تھے اور انگریزی پہ شاید اتنا عبور نہیں تھا, اور چونکہ ایک مخصوص موضوع پر خبریں کرتے تھے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا, اس کے بعد کیا ہوگا کہ دفتر پہ فون آئیں گے آپ کے, ایسا ہو گیا, اخبار بدنام ہوگا, اس کی ساکھ متاثر ہوگی, ایڈیٹر کا نام بدنام ہوگا. حالانکہ ایڈیٹر تو گھر میں بیٹھ کے اس وقت آرام کر رہا تھا اپنی خوابگاہ میں, لیکن سب ایڈیٹر نے جو غلطی کی اسے باہر کوئی نہیں جانے گا تو اخبار کا ایڈیٹر کون ہے اور اخبار کا نام کیا ہے, اس سے ساکھ متاثر ہوگی. یعنی ساکھ بننا بہت مشکل ہے, اخبار کا اعتبار یا کریڈیبلٹی قائم ہونا بہت مشکل ہے, لیکن اس کا جانا بہت آسان ہے. ایک غلطی میں جو ہے بہت کچھ آپ کی ساکھ جا سکتی ہے. یعنی اصولاً اخبار میں چھپنے والی ایک سطر کے لیے نیوز ایڈیٹر ذمہ دار ہوتا ہے جو اس وقت بیٹھا ہوا تھا. مالک تو آپ اپنے گھر میں رہے گا جیسے کہ میں نے بتایا, لیکن نیوز ایڈیٹر جو اس وقت ڈیسک پر بیٹھا ہوا ہے, انچارج ہوتا ہے, اخبار کے ایڈیٹر کا یا مالک کا نمائندہ ہوتا ہے, اور ہر اچھی اور بری خبر کا ایک سطر کا ذمہ دار عملاً اور اصولاً وہی ہوتا ہے, اور ہر اچھے اور برے کے لیے وہ جواب دہ ہوتا ہے. لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جب آپ کچھ اچھا کام کرتے ہیں دفتروں میں تو کوئی پذیرائی اس کی نہیں ہوتی,
लेकिन बुरा काम करता है तो फौरी उंगलियां उठती हैं। तो ऐसे ही एक वाकया हुआ था कि मैं एक अखबार में काम करता था कि वहाँ पर ऐसे किसी की गलती हुई और गलती को नुमायां किया गया। ऐसी नोटिस बोर्ड होती थी और वहाँ पर चश्मा कर दिया जाता था कि ये गलती हुई। तो जो है उन साहब ने जो मालिक से कुछ लाड प्यार भी कर लेते थे, तो उन्होंने कहा कि ये साहब आप हम जब अच्छा करते हैं जब तो कुछ नहीं करते, लेकिन एक गलती हुई तो आप इतनी जो है इसकी तशहीर कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप अच्छा करते हैं इसी के आपको पैसे मिलते हैं। तो कहने का मतलब कि फिजीराई अच्छे काम की नहीं होती, लेकिन जब आप बुरा काम करते हैं तो आपकी तरफ उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। सहाफत को उजलत में लिखा जाने वाला अदब भी कहा जाता है, लिटरेचर इन अ हरी, यानी ये जल्दी में लिखा जाने वाला अदब है लिटरेचर। और आपके पास अखबारात में और टीवी चैनल्स में काम करते वक्त बहुत कम होता है, लम्हों में फैसले करने पड़ते हैं और गलतियों का बहुत ज्यादा एहतिमाल होता है। शायद सहाफत ऐसा वाहिद पेशा है जिसमें काम करने वालों की तमाम कारकर्दगी दुनिया के सामने आती है और रिकॉर्ड हो जाती है। आप किसी दफ्तर में क्लर्क हैं, आज कुछ काम नहीं हुआ, आज कुछ गलती हो गई, कल उसको दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन अखबार जब एक बार छप जाता है तो वो डॉक्यूमेंट बन जाता है और आपकी गलती भी महफूज हो जाती है। तो बहुत चौकस रहना पड़ता है। अखबार में गलतियां बहुत आम बात है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये उजलती अदब, उजलत में लिखा जाने वाला अदब है। और न्यूयॉर्क टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है अमेरिका का, वहाँ पर यानी एक कॉलम रोज छपता है, यानी गलतियों की इस्लाह का कॉलम, तस्हीह का कॉलम रोज छपता है। कहने का मतलब ये है कि ये कोई आसमानी सहीफा नहीं है, इसमें गलतियों की गुंजाइश होती है, छोटी मोटी गलतियों को माफ भी किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि तकरीबन तमाम अखबार में हर रोज कहीं ना कहीं गलतियाँ होती हैं और बाज़ गलतियाँ बहुत दिलचस्प होती हैं और बाद में हम उसे सोचकर काफी लुत्फ लेते हैं। एक छोटा सा वाकया मैं सुनाऊंगा कि आमतौर पर 15 अगस्त 26 जनवरी को क्या होता है कि फ्लैग होस्टिंग होती है। तो ऐसी स्कूलों में खासतौर पर बड़ा एहतमाम होता है और स्कूल वालों को बड़ी ख्वाहिश भी होती है, आजकल मीडिया को हर एक को जो है अपना नाम आने की ख्वाहिश होती है। तो एक स्कूल में भी इसी तरह की परचम कुशाई हुई थी। और क्या क्या होता है, यानी आप बताएं कि एक आइडियल इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या होता है स्कूलों में? फ्लैग होस्टिंग होती है, उसके बाद नेशनल एंथम होता है, स्पीच होती है और फिर पैट्रियोटिक सॉन्ग्स भी होते हैं। मिठाई, यहाँ पर मैं आना चाहूँगा कि होती है, हर कोई एक्सपेक्ट करता है कि मिठाई दी जाती है। तो इस तरह का एक वाकया हुआ था कि अखबार के साहब एक अपनी जो परचम कुशाई की खबर थी वो लाकर उन्होंने अखबार में दी और हमने उसे छाप दी। लेकिन क्या हुआ कि एक कुछ जगह बच गई, एक जगह बच गई कि अब क्या लिखा जाए, एक जगह खाली हो रहा है या अच्छा मालूम नहीं हो रहा। तो आखिर में हमारे एक साथी ने कहा कि चलो लास्ट में लिखते हैं कि परचम कुशाई हुई वगैरह वगैरह, उसके बाद शीरीनी तकसीम की है, शीरीनी यानी मिठाई तकसीम की है। होता है जैसा कि आपने कहा, एक्सपेक्टेड है कि उस दिन शीरीनी तकसीम होती है। अब दूसरे या तीसरे दिन एक आदमी सर पर पट्टियां बांधे हुए उसके स्कूल का प्रिंसिपल आ गया हमारे पास कि ये क्या लिख दिया आपने? मैंने तो नहीं लिखा था शीरीनी तकसीम हो गई। अब वहां पर शीरीनी तकसीम ही नहीं हुई। तो लोगों ने इल्जाम लगाया कि आपने शीरीनी के पैसे खा लिए हैं और उसके साथ मारपीट हुई। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ऐसा हुआ था। एक न्यूज एडिटर में इंतजामी सलाहियतें यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होनी पड़ती है, क्योंकि कई बार हंगामी हालात पैदा होते हैं। यानी डेडलाइन होती है कि फलां वक्त तक आपको देना है और आपको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट एडिशन क्या होता है और सिटी एडिशन क्या होता है अखबार में? एनी आइडिया? सिटी एडिशन में सिर्फ शहर के बारे में बताते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडिशन में उसके आसपास के खर्चों में उसके बारे में जी। तो सही है बिल्कुल। डिस्ट्रिक्ट एडिशन में जाहिर है कि अजला की और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की खबरें ज़्यादा रहती हैं और सिटी एडिशन में सिटी की खबरें ज़्यादा होती हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडिशन जो होता है उसका एक वक्त मुकर्रर होता है। तो आइडियली हमारे हैदराबाद के उर्दू अखबार में रात 8 बजे डिस्ट्रिक्ट एडिशन छप जाता है। क्यों इतनी जल्दी क्यों छपता है? ये सर
पहुंचने तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि वो निजामाबाद जाना पड़ता है, करीमनगर जाना पड़ता है, या कहीं है तो बसेस का टाइम रहता है और गाड़ियों का टाइम। और सिटी एडिशन जो होता है वो रात में 2 बजे के आसपास छपता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा खबरें वक्त की आती हैं और डिस्ट्रिक्ट एडिशन में कम होता है। कहने का मतलब डिस्ट्रिक्ट एडिशन के लिए रात 8 बजे की डेडलाइन, उससे पहले चाहे कुछ हो जाए आपको देना है, वरना गाड़ी छूट जाएगी जो निजामाबाद को जानी है या कहीं और जानी है या करीमनगर जानी है, महबूब नगर जानी है। और सिटी एडिशन में भी ऐसे ही है, अगर आप वक्त पर अखबार ना छापेंगे तो बाहर जो हॉकर्स की लाइन लग जाएगी कि अखबार नहीं छपा। तो कहने का मतलब ये है कि डेडलाइन होती है, और चाहे आपके अंदरूनी हालात कुछ हों, कोई सब एडिटर हाजिर ना हुआ हो ड्यूटी पर, 2 लोग ना आए, 3 लोग ना आए, लेकिन जो न्यूज़ एडिटर होता है उसे मैनेज करना पड़ता है। इंतजामी सलाहियतों का मतलब ये कि उसे इंतजामात करने पड़ते हैं, कभी कोई नहीं आया तो उसकी जगह उसे दुगना काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से इंतजामी सलाहियतों की मैं बात कर रहा था। और एक बात कि न्यूज़ एडिटर को बहुत जुर्रतमंद होना पड़ता है, यानी उसमें कुव्वत फैसला कूट कर भरी होनी चाहिए, यानी डिसीजन मेकर होना चाहिए फौरन। क्यों डिसीजन मेकर, कब फैसलों की कब जरूरत पड़ती है, आप मुझसे कुछ बताना चाहें? न्यूज़ एडिटर, अभी कुछ तारुफ तो हुआ है कि न्यूज़ एडिटर क्या करता है, तो उसे क्या फैसले करने पड़ते हैं? तो जैसे कोई भी न्यूज़ आई है तो बहुत जल्दी मतलब उसको फैसला करना होता है कौन सी न्यूज़ हमारे न्यूज़पेपर में छपेगी, कौन सी नहीं छपेगी। और जैसे अगर वर्कर्स नहीं आए, साहब ने अभी कहा, तो मतलब कैसे वो मैनेज करेगा, वो सारी चीज़ें तुरंत से डिसीजन लेना होता है, कैसे वो उसको मैनेज करेगा। जी बिल्कुल सही है। और उसे सबसे अहम फैसला जो करना होता है कि फ्लैश मालूम है आपको, लीड खबर, सबसे बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज और फ्लैश में फर्क है। ब्रेकिंग वो है कि जो अभी आई है, ताज़ा खबर, अभी हम ब्रेक कर रहे हैं, न्यूज आपके सामने, दुनिया के सामने ला रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज अलग है। और जो अखबारात में फ्लैश या लीड खबर होती है, वो जो सबसे बड़ी खबर होती है, अखबार बैनर जो खबर जो सबसे ज्यादा नुमायां होती है, उसके बारे में भी फैसला करना पड़ता है, और वो बहुत अहम फैसला होता है। और वो न्यूज़ एडिटर की यानी जो कॉमन सेंस है और न्यूज़ सेंस है, उसका इम्तिहान होता है। और आम तौर पर अखबारात में जो लोग, मैं समझता हूँ कि कुव्वत फैसला की कमी होती है जिन लोगों में, वो क्या करते हैं, फर्ज कीजिए कि 2 अहम खबरें आई हैं, तो क्या करते हैं लोग, अखबार में जुमला कितने कॉलम्स होते हैं? 8 कॉलम। तो वो लोग जो जिनको अपने फैसलों पर यकीन नहीं होता, वो लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला उन लोगों ने बना लिया गैर महसूस तौर पर, कि वो लोग 4 कॉलम में लगा देते हैं खबरें, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं समझता हूँ कि यानी हमारे टारगेट ऑडियंस के लिए ये जरूरी नहीं है कि दोनों खबरें यकसा अहमियत की हामिल हो, यानी आपको फैसला लेना ही है कि कौन सी खबर ज्यादा अहम है। और जब 4 कॉलम की खबरें लगाई जाती हैं, तो मैं मेरे एक अजीज दोस्त हैं सहाफत में, मैं उनसे गुफ्तगू में कहता हूँ कि ये सहाफती शिर्क है, यानी आप शरीक कर रहे हैं, अहम खबर में शरीक कर रहे हैं। तो यहाँ पर जरूरत पड़ती है कि इस शिर्क से बचने के लिए हमें कुव्वत फैसला होनी चाहिए और आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। एक न्यूज़ एडिटर में सबर, बुर्दबारी, मिलनसारी, इंसानियत और हिस्से मिजाज और जितनी जो पॉजिटिव खुसूसियात हैं इंसानी, उन सब का होना ज़रूरी है। क्यों सब्र क्यों ज़रूरी है, और जो मैंने पॉजिटिव चीज़ें की हैं, और खासतौर हिस्से मिजाज क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जो रीडर्स रहते हैं उनकी आप दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए अपनी रीडरशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, न्यूज़पेपर जो भी सर्कुलेशन भी से बढ़ सकता है। जी, और कोई? सर न्यूज़पेपर जो है समाज का आईना होता है, और जो उसकी न्यूज़ की जाती है उससे समाज मतलब या तो आगे बढ़ता है, या मतलब सारे भी समाज में पढ़ते हैं, सोसाइटी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। इसकी सबसे मतलब साधु होना चाहिए कि कैसी न्यूज़ है, और सर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना होता है, उन सबको देखते हुए और अपने बिहेवियर को भी सही रखना होता है। जी बिल्कुल सही है। और इनके अलावा मैं समझता हूँ कि हिस्से मिजाज इसीलिए भी ज़रूरी है कि उसे एक टीम लीडर होता है वो न्यूज़ एडिटर, तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। तो माहौल अगर अच्छा रहे, हंसी खुशी का रहे, तो काम भी अच्छा होता है। और मैं फिलहाल एक वाक़या बयान करना चाहूँगा कि मेरे अखबार में एक हैदराबाद में बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था कोई 2 साल पहले, और उसके बाद जिस शख्स ने खबर दी थी उसकी, और उसकी कुछ जिस्मानी माजूरियाँ थी, मजबूरी थी, और वो फील्ड पर नहीं जा सका था। और
تو کچھ اور خبریں ایک اور ساتھی نے بھی دی تھی، اور اس ساتھی نے ایک عہدیدار والا کے ساتھ مل کر جن صاحب نے خبر دی تھی، یعنی اڑ گئے وہ کہ ان کی یعنی ان کا نام کے ساتھ خبر نہیں جانی چاہیے، بائی لائن ان کا نہیں جاننا چاہیے. ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ ہے. آدمی کو چاہیے کہ بڑا دل رکھے، ایک اعلیٰ عہدیدار جو بھی ہوتا ہے، بلکہ ہر ایک کو ہونا چاہیے کہ بڑا دل رکھے اور کوئی نیگیٹو فیلنگس کسی کے تعلق سے نہ رکھے. لیکن اڑ گئے اس دن اور اس شخص کی نام کے ساتھ سٹوری جاننے کی، بلکہ غیر متعلقہ آدمی کا نام، وہ غیر متعلقہ آدمی میں ہی تھا، میری مرضی کے خلاف میرا نام ڈال دیا گیا. اور آج اس شخص نے جس کا نام نہیں ڈالا گیا، حالانکہ وہ اس کا مستحق تھا، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کس دنیا کے لیے ہم جھگڑ رہے ہیں اور معمولی باتوں پر، بہت افسوس ہوتا ہے. لیکن خیر ایسے ایک آدھ دو کا واقعہ چھوڑ کر میں جس اخبار سے فی الحال وابستہ ہوں وہاں پر میں رات میں انچارج ہوتا ہوں، نیوز ایڈیٹر ہوں، اور بہت خوشگوار ماحول ہے اور مجھے کام کرنے میں وہاں بڑا مزہ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اخبار ایک مرتبہ جب چھپ گیا تو نیوز ایڈیٹر کی ذمہ داریاں ختم ہو گئیں، بلکہ نیوز ایڈیٹر کو ہمیشہ خبروں پر نظر رکھنی پڑتی ہے، یعنی ہمیشہ ٹچ میں رہنا پڑتا ہے. کبھی سنا جاتا ہے، کبھی دوسرے ذرائع ہیں، آج کل کئی ذرائع ہیں، واٹس ایپ ہے اور کئی طرح کی ذرائع ہیں، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے آپ کے پاس خبریں آتی رہتی ہیں. اور کبھی کبھی میری جو عادت ہے کہ خبروں سے جو ہے ہم بیشتر میرے جو صحافتی دوست ہیں ان لوگوں کے گھر میں اس مسئلے پر کہ وہ گھر کو جو ہے گھر میں بھی جو ہے دفتر کو لے آتے ہیں اس بارے میں. کبھی کبھی جو ہے پانی پت کا میدان سج جاتا ہے صحافیوں کے گھر میں. ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ وقت اس کے لیے صرف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہمارے حیدرآباد میں کہتے ہیں کہ جو باورچی ہوتا ہے ماہر وہ ایک دانہ دے کر ہی بتا دیتا ہے کہ بریانی کیسی ہوئی ہے. یا تو اس طرح کی خبروں پہ نظر رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گھر پر بھی 24 گھنٹے جو ہے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں. آپ کو ایک آدھ ہینڈ بھی مل جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو ہمیشہ اخبارات و رسائل پر نظر رکھنی چاہیے. جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ ہیڈ لائنز کم سے کم میں جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مجھے کبھی شرمندگی نہ ہو. تب کبھی جو ہے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے جو حالات حاضرہ کے موضوعات ہیں. کئی آج کل جو ہے اس کے علاوہ کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو، یعنی ہمیشہ بالخصوص تعلیم کے اور سیاسی موضوعات کے جو ہسٹری بن گئے ہیں تاکہ پس منظر سے واقف ہو. آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تار بہت عرصے پہلے بلکہ صدیوں سے بھی مل سکتے ہیں، بلکہ تاریخ اور پس منظر سے واقف ہونا ضروری ہے. اور ویسے اگر آپ گھر میں ہیں تو آج کل جیسے اس بارے میں بات ہو چکی ہے کہ ذرائع کیا ہیں. آپ کو ٹیلی ویژن سے خبریں مل سکتی ہیں جو حالات حاضرہ سے واقف رہنے کے لیے، اور آج کل تو واٹس ایپ ہے. اور سوشل میڈیا کی ایک برائی جو ہے کہ قابل اعتبار نہیں ہوگی. آپ جب کوئی چیز دیکھیں فیس بک پر یا واٹس ایپ پر تو فوری اس پر یقین نہ کریں، کیونکہ بہت ساری غلطیاں ہو سکتی ہیں. اور ایسا ہوا بھی ہے، آپ لوگ بھی واقف ہوں گے کہ غلط خبریں پہنچا دی جاتی ہیں، بلکہ ہر چیز جو اس پر آتی ہے وہ درست ہونا ضروری نہیں. کافی احتیاط برتنی چاہیے اور اس کی دوسرے ذرائع سے توثیق کرنی چاہیے، تب کبھی آپ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں اس خبر کی اور اس کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یعنی مجھے خوشی ہے کہ میں اس پیشے سے وابستہ ہوں، اس کی کچھ میں وضاحت کرنا چاہوں گا. عام طور پر لوگ گھر جا کر کیا کرتے ہیں؟ آپ کے والد صاحب گھر آ کر کیا کرتے ہیں، یا کوئی بڑے جو بھی ہیں؟ آرام کرتے ہیں اور ہاں اور آپ بتائیے آپ کے گھر میں کیا کرتے ہیں بڑے لوگ؟ صبح سے شام تک گھر جب آتے ہیں کام کرنے کے بعد صبح سے شام تک جو مصیبت گھر سے ریسٹ کی مصیبت کیا؟ ہاں ہاں اچھا. اور ٹی وی پر کیا دیکھتے ہیں؟ نیوز زیادہ نیوز زیادہ، کوئی چینل سے کوئی پروگرام سے ایسے. ہاں تو آپ نے کہا اخبارات ملاحظہ کرتے ہیں اور آپ نے کہا کہ آپ کے گھر میں ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن ہم ایسے خوش قسمت لوگ ہیں جو جنہیں آ کر اخبارات اور ٹی وی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی بیٹھ کر تفصیل سے، کیونکہ ہم وہی کام کر کے آتے ہیں. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا یعنی 1+1 آفر ہے، سمجھیے یہ نوکری کی نوکری ہے اور جو ضروری ہے آپ آج کل کے حالات سے واقف ہوں. تو اس پیشے میں ہم کو یعنی ایک ہی چیز میں ہمارے 2 کام ہو جا رہے ہیں. اچھا ایک ویسے میں اکثر
अक्सर हमारे जो दोस्त लोग हैं उनसे कहता हूँ कि आई एम पेड टू लर्न, यानी अखबारात में मैं जब काम कर रहा हूँ तो इसके काम के पैसे नहीं है, बल्कि मुझे सीखने के पैसे मिल रहे हैं, मुझे जानने के पैसे मिल रहे हैं। एक तरह से ये तनख्वाह नहीं है, मेरी स्कॉलरशिप है, और कई उर्दू अखबारात में तनख्वाह भी स्कॉलरशिप के बराबर ही होती है। लेकिन पैसे का पहलू हम निकाल दें तो एक बार जब इसका चस्का लग जाए अखबारात का और खबरों का तो मुश्किल से छूटता है, यानी छूटती नहीं है मुंह से। ये काफिर लगी हुई एक मिसरा है, दूसरा शेर मुझे याद नहीं, दूसरा मिसरा मुझे याद नहीं। एक न्यूज एडिटर के लिए कोई खबर बड़ी नहीं हो सकती, उसे ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ता है कि इससे भी बड़ी खबर आ सकती है। कुछ वजाहत मैं करूंगा और अपना एक बहुत अच्छा तजुर्बा बयान करूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप इस पर कोई रोशनी डालना चाहें कि मेरा ये है कि ज़हनी तौर पर तैयार होना पड़ता है कि इससे भी बड़ी खबर कोई आ सकती है। इसका क्या मिसाल के तौर पर पेरिस में परसों एक बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला हुआ है, तो अब मैंने कहा कि इससे भी बड़ी खबर आती है, इसका क्या मतलब? इसका सही मतलब है कि जैसा कि पेरिस में हुआ तो हो सकता है उससे ज़्यादा बड़ी, जैसे फिर पेरिस ने कार्रवाई की, अगर वो उसी दिन करती, सीरिया में उन्होंने बमबारी की है, अगर वो उसी दिन करती तो वो उससे भी बड़ी खबर थी कि उन्होंने उसका रिप्लाई किया और बमबारी की वहाँ पर। एट द टाइम उससे ज़्यादा अहमियत की कोई खबर आती तो उससे बड़ी खबर है। जी ठीक है, और कोई खबर ऐसी इम्कानी खबर जो उससे बड़ी हो सकती है? जैसे पेरिस में बम ब्लास्ट हुआ, अगर दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ तो वो ज़्यादा बड़ी खबर है। वेरी गुड, सही, यही कहना चाह रहा हूँ। मैं एक अपना तजुर्बा बयान करूँ। जब हमने अखबारात में अपना सफर शुरू किया इब्तिदाई दिनों में, तो आजकल तो हम पुराने पापी हो गए हैं, लेकिन उस वक्त जो है हम बिल्कुल मासूम थे और हमें खबरों की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होता था, और हम दिन भर से फॉलो करते थे कि क्या खबरें हैं, ताकि खासतौर पर जब हमको ऐसे हालात पैदा हुए थे, जब हम इब्तिदा में सियासत में आए थे काम करने के लिए, सियासत से मतलब पॉलिटिक्स नहीं, अखबार सियासत, जब हम आए थे और हमें वहाँ पर इंचार्ज बनाया गया था, हमारी भी ड्यूटी होती थी कि एक दो दिन हम भी जो है रात में इंचार्ज हुआ करते थे, तो खबरें क्या देना चाहिए और फ्लैश वगैरह बड़ी खबर क्या है, इसका फैसला हमको करना पड़ता था। लेकिन हम हकीकी मायनों में उस फैसले, उस पोजीशन के मुस्तहिक नहीं थे। उस वक्त काफ़ी कम उम्र में हमें वो जिम्मेदारी दे दी गई थी, उस वक्त के हालात वैसे थे। तो हम क्या करते थे उस वक्त कि हम, क्या मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कि हम दिन भर से जो है खबरों पर नजर रखते थे। तो 9/11 का जब वाक़या, और उस दिन की बात में मेरा जो तजुर्बा रहा मैं बता रहा हूँ कि उस दिन मैं सुबह देख रहा था, टीवी चैनल्स फॉलो कर रहा था, उस वक्त इंटरनेट का उतना चलन नहीं था, देख रहा था मैं, तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपोजिशन में थी गालिबन, और उसके कोई 100 से ज़्यादा MLAs ने इस्तीफा दे दिया ताकि प्रेशर डाला जा सके कि असेंबली डिसॉल्व की जाए और नए इलेक्शंस हो जाए। तो मैं समझने लगा कि हाँ, ये आज की बड़ी खबर है, क्योंकि मैं फॉलो कर रहा था। और उसके चंद घंटों बाद मैं उस वक्त एक सिटी केबल हुआ करता था दूध, हैदराबाद के पुराने शहर के दूध बावली इलाके में, वहाँ पर मैं काम करता था। तो मैंने जो है मैं वहाँ पर गया, वहाँ देखा तो लाइट बंद है, मैंने बिजली नहीं है वहाँ पर। तो ऐसा ऐसा पता चला कि उस वक्त ना हैदराबाद तो दूर, पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी बिजली नहीं है और कई ग्रिड्स फेल हो गए। तो मैं सोचने लगा कि नहीं, ये बड़ी खबर हो, छोड़ दो समाजवादी पार्टी की खबर छोड़ दें, ये बड़ी खबर है, क्योंकि 3 रियासतों में बिजली नहीं। मैं सोचा कि ये बड़ी खबर है। और जब मैं रात में 8 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू होती थी और मैं जब जाकर अपने निशिस्त पर बैठा, तो एक साहब जो मेरे मुआविन उस वक्त थे, उन्होंने एक छोटी सी खबर बनाकर लाई कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से तैयारा टकरा गया। मैं बोला कि अरे इतनी बड़ी खबर है और इतनी छोटी दे रहा है, और मैं परेशान हो गया। और अगर वो खबर यानी हादसा भी होती तब भी बड़ी खबर थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से अगर तैयार। लेकिन फिर जैसे जैसे खबरें आती गई और वो इतनी बड़ी खबर थी कि वो समाजवादी पार्टी की खबर को पीछे छोड़ दिया उसने, और जो पावर फेलियर था उसकी खबर को छोड़ दिया, और ये बहुत बड़ी खबर थी और उसके असरात आज तक पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं, वो उतनी बड़ी खबर थी। अक्सर एक वाक़या है, अकबर बीरबल का वाक़या आप लोगों को मालूम है, लकीर का वाक़या, आप सब वाकिफ हैं। यानी एक लकीर है, उसे छुए बगैर उस लकीर को छोटा कर दे तो क्या करेंगे? हाँ, तो
तो जो 9/11 का वाक़या था वो बड़ी लकीर थी, यानी वो जो दूसरी लकीरें थी समाजवादी पार्टी की खबर की और पावर ग्रिड फेलियर की, वो छोटी हो गई होगी, इतनी बड़ी लकीर आ गई। और उस वक्त शायद उस वक्त अगर दिल्ली में धमाका होता तब भी जो है यही खबर फ्लैश होती। एक न्यूज़ एडिटर की इन सिफात के तस्करे के बाद अब कुछ बातें एडिटिंग और ट्रांसलेशन के फन के बारे में कर लें। जैसे कि हमारी में जिक्र आ चुका है, सहाफ़ी बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं। एक वो जो फील्ड पर जाते हैं, कोई रोशनी डालना चाहेगा, फील्ड पर जाते हैं तो क्या मतलब? फील्ड पर जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वेरी गुड। और रिपोर्ट्स आते हैं जहाँ पर कोई इवेंट ना हो वहाँ पर, जी जी, या फिर स्पोर्ट्स रिपोर्टर स्पोर्ट्स ग्राउंड में जाके वहाँ से रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं, या फिर पॉलिटिकल पार्टी में जाके रिपोर्ट कलेक्ट करते हैं। वेरी गुड। तो ये रिपोर्टर्स कहलाते हैं। और जो दूसरी तरह के सहाफ़ी होते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, वो डेस्क पर होते हैं, दफ्तर में बैठे हुए हैं, जिन्हें एडिटर्स कहा जाता है। सब एडिटर होता है और प्रूफ रीडर भी होता है और न्यूज़ एडिटर भी होता है। न्यूज़ रीडर यानी टीम लीडर होता है। एक कुछ मातहत कुछ सब एडिटर्स के ऊपर जो होता है उनका जो लीडर होता है उस दिन का, उसे न्यूज़ एडिटर कहा जाता है। और अखबार में दोनों की अहमियत है। सिर्फ डेस्क पर बैठा हुआ आदमी फील्ड के लोगों की ताउन के बगैर कुछ नहीं कर सकता, और वो लोग जो हैं वो अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते। ये अखबार एक टीम वर्क होता है। आज हमारे मौजू का जो तकाजा है उसके पेश नज़र हम सिर्फ डेस्क जर्नलिस्ट की बात करेंगे, जो कि मैं हूँ। आमतौर पर फील्ड जर्नलिस्ट की जबान परफेक्ट नहीं होती। जो रिपोर्टर्स होते हैं आमतौर पर, यानी ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि फील्ड पर है तो वो खराब ही होगा। फील्ड पर मिर्जा गालिब हो सकता है, या अभी जोश का जिक्र हो रहा था हमारी निजी गुफ्तगू में, हो सकता है, लेकिन आमतौर पर रिपोर्टर्स की जबान उतनी परफेक्ट नहीं होती। और जो खास तौर पर अजला के जो नामा निगार होते हैं, निज़ामाबाद, गरीब नगर, महबूब नगर, वरंगल वगैरह वगैरह, इनकी जबान तो और भी बुरी हो सकती है। एक हमारे करीम नगर के नामा निगार थे, उनकी जब मैं खबरें और स्क्रिप्ट कॉपी देखता था तो मैं अपने बाल नोट्स लेता था और बुरे बुरे ख्यालात आते थे। उतना टॉर्चर उनका जो उसलूब था, तहरीर था। रिपोर्टर जब खबरें लाते हैं तो बाज़ वक्त सिर्फ इत्तला डंप कर देते हैं, यानी कभी कभार उन्हें पता ही नहीं चलता है कि उन्होंने जो स्क्रैप लाया है उसमें कुछ हीरे जवाहरात भी हैं, यानी बहुत कीमती बातें हैं उनमें, और यहाँ एडिटर्स की जौहरी का काम करते हैं। यानी जो अच्छी बातें होती हैं, जो यानी जो नुमायां करने वाली और पब्लिक की दिलचस्पी की कारीन की होती है, वो काम जो डेस्क जर्नलिस्ट को ही करना होता है। डेस्क जर्नलिस्ट का बुनियादी काम ये होता है कि वो रिपोर्टर्स की दी हुई खबरें दुरुस्त करे, यानी उसका जो इम्ला होता है और ज़बान की ग्रामर होती है वो दुरुस्त करे, और उसमें ज़रूरत पड़ने पर दोबारा लिखे। यानी ये नहीं कि बस वहीं का वहीं कुछ करेक्शन कर दें। ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने हमारे नामा निगार की बात, जिनकी वजह से मुझे खुदकुशी के ख्याल आते थे, उनकी ज़बान उसे दोबारा लिखने के सिवा कोई चारा नहीं। और अभी ऐसे हैं हमारे पास कि उनकी खबरें दोबारा लिखनी पड़ती हैं। और तो हाँ, तो ज़बान दुरुस्त करने के अलावा और दोबारा लिखने के अलावा यानी उस खबर की जो जान होती है, सबसे अहम नुक्ता है, उसे पहचानना पड़ता है। जो न्यूज़ एडिटर होता है, सब एडिटर होता है, क्या मतलब है इसका कि उसे पहचानना पड़ता है? अहम बात कोई वजाहत करना चाहेगा? खबर की अहमियत जी, कहाँ पर लगाई? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हेडलाइंस नुमाया करने के लिए। जी, ये वो तो कई बात है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी कोई जी अगर जैसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कोई बात कही तो कोटेशन क्या बननी चाहिए, इस बात के लिए भी उस पर फोकस करना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, कौन सी बात को हमें कोट करना है हेडलाइन के लिए। हाँ, कौन सी बात। और सही, आप लोगों को पता है कि खबर की लीड क्या होती है? लीड क्या होती है? लीड फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो खबर का लीड होती है, जिसमें हम वाक़या कहाँ पर हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसमें इन्वॉल्व कौन है, फायदे यूजर बने, पूरा उसमें लिखते हैं। वो एक शॉर्ट समरी भी कह सकते हैं उनसे न्यूज़ की। बिल्कुल, लीड यही है कि जो सबसे अहम बात है उसे उसके पस मंजर के साथ पेश किया जाए, कब, क्या, क्यों, कहाँ, ये बातें उसमें आनी चाहिए, सबसे अहम बात। और बाद पीटीआई की
जो न्यूज़ एजेंसी है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसकी लीड का तरीका, और बहुत अच्छी लीड होती है पीटीआई न्यूज़ एजेंसी। लेकिन बाज़ औक़ात जो पीटीआई की लीड होती है वो हमारे लिए मौजूद नहीं होती। हमारे लिए मुराद हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए बाज़ औक़ात मौजूद नहीं होती, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। ये कोई हरफ़े आखिर नहीं है पीटीआई को या न्यूज़ एजेंसी को मिनोवन उसे देने, वैसा नहीं, हम उसे तब्दील भी कर सकते हैं। और उसके नीचे जो बात दी गई है जो लीड में नहीं है लेकिन नीचे जो बातें हैं वो अगर हमको हमारे जो क़ारीन हैं उनके नुक्ते नज़र से अहम आपको नज़र आ रही है तो आप उसे नुमायां करके उसकी सुर्खी बना सकते हैं, या हस्ब ज़रूरत आप जो है उसकी लीड चेंज भी कर सकते हैं। लीड के जिक्र से मैं आपको बताऊं कि खबर और अफसाने में क्या फ़र्क होता है। अफसाना यानी फिक्शन जो आदमी अपनी सोच से लिखता है, क्या बुनियादी फ़र्क क्या होता है खबर और अफसाने में? सर खबर जो होती है उसका हमें खात्मा सबसे पहले पता चल जाता है, बल्कि अफसाने के लिए होता है कि हमको उसके पढ़ने के लिए पूरा अफसाना पढ़ना होगा उसके खात्मे के लिए। वेरी गुड, बहुत और सर खबर में जो लैंग्वेज होती है वो आवाम से जो है बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, बहुत ही आम फहम होती है, लेकिन जो अफसाने की लैंग्वेज होती है वो अदबी होती है, अदब से रिलेटेड होती है। अफसाने में सर अपना मौक़िफ़ भी रख सकते हैं लेकिन खबर में अपना मौक़िफ़ भी है। जी ठीक है, बहुत अच्छी। बुनियादी तौर पर अफसाने में अंजाम जो है वो आखिर में मालूम होता है और खबर में अंजाम पहले, जो लीड मैंने कही है वो अंजाम होता है कि असल बात क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ, पहले वो देना, तफसीलात सब बाद में आएंगे। और अफसाने में पहले जो है दूसरी तफसीलात आती हैं और वो पर्दा हिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आखिर में मालूम होता है क्या होगा। तो ये बुनियादी फ़र्क है। और एक मुहावरा मुझे पसंद है अंग्रेजी का बहुत, कि ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। सच में ऐसे वाक़यात होते हैं जो अफसाना निगाह सोच भी नहीं सकता, ऐसे वाक़यात होते हैं। और ख़बरों में भी जो है यानी कई ऐसे अफसाने होते हैं जो हकीकी वाक़यात से मुतासर होकर बनाई जाती हैं। कई फिल्में भी बनती हैं हकीकी वाक़यात पे। ऐसी कोई फिल्में आप बता सकते हैं जो हालिया अरसे में आई हैं जो हकीकी ज़िंदगी पर मबनी हैं? वेरी गुड। और थ्री इडियट्स हकीकी है? नहीं, मैंने नॉवल सही यानी ये एक हमें तहरीक पैदा करती हैं ऐसी फिल्में, मांझी हो या अभी आपने जिन मिल्खा सिंह वगैरह का जिक्र किया है उनकी जिंदगियाँ हमें तहरीक पैदा करती हैं कि हम भी कुछ करें। एक और फिल्म थी जॉली एलएलबी भी जो है थी किसी एक वाक़े पर थी, सलमान खान का नहीं, उससे पहले दिल्ली में पेश आया था वाक़या, कोई नंदा कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे या सनतकार थे, उनकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। बहुत अच्छी एक और था नो वन किल्ड जेसिका, अच्छा नो वन किल्ड जेसिका। अभी हाल में बीजेपी के जो इलेक्शन तो बिहार में उन्हें शिकस्त हो गई, तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि मोदी किसी के सर पर जिम्मेदारी थोपने की बात नहीं की जा रही, पल्ला झाड़ रहे थे लोग। तो मुझे अक्सर ये फिल्म का टाइटल भूल रहा था, नो वन किल्ड जेसिका। अखबार की सुर्खी बहुत अहम होती है और सुर्खी रिपोर्टर्स नहीं लगाते हैं बल्कि डेस्क वाले लगाते हैं, सब एडिटर या न्यूज़ एडिटर लगाता है। और ज़्यादातर लोग आप में से यानी अखबार रोज पढ़ते हैं, पूरी पढ़ते हैं खबरें? कोई नहीं पढ़ता, मैं समझता हूँ कि कोई नहीं पढ़ता। या तो आदमी रिटायर्ड हो या दवाखाने में बैठा हुआ मरीज हो या तीमारदार, वो जो है पूरी खबरें पढ़ता है, अलिफ से वस्सलाम तक कहते हैं। लेकिन आमतौर पर लोग सुर्खियाँ ही पढ़ते हैं। और सुर्खी का काम ये होता है, सब एडिटर को सुर्खी ऐसी लगानी चाहिए कि कारी पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। जो मरीज ना हो वो भी पढ़े, जो तीमारदार ना हो वो भी पढ़े, और जो रिटायर्ड ना हो वो भी पढ़े। ऐसी कोशिश हमारी होनी चाहिए। सुर्खी जिस तरह की होगी, और जैसे कि अभी मैंने आपको ये खबरें दी, खबरें आमतौर पर वही होती हैं जो मज़ा पैदा होता है वो सुर्खी की वजह से होता है। और आदमी जिस लहन में, जिस अंदाज में, जिस कैफियत में सुर्खी पढ़ता है
उसी कैफियत में खबर पड़ता है, तो उससे जो है यानी जो कैफियत तारी होती है उस पर, वो सुर्खी की वजह से तारी है। पहले सुर्खी ऐसी होनी चाहिए कि उसे पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए, और सुर्खी के जो यानी जिस तरह की होती है अंदाज उसका, उसी कैफियत में वो पढ़ता है। मुख्तसर आगे बढ़ते हैं कि अखबारात में एडिटिंग का क्या मतलब, बेसिकली एडिटिंग क्या है, कोई रोशनी डालना चाहेगा? एडिटिंग क्या है? कोई anybody would like to define what is editing? सर न्यूज़ सर बन जाती है, सर जो लास्ट में सब एडिट होगा उसको वो पूरी फीडिंग करता है उसकी। हाँ सर उसमें कोई मिस्टेक ना हो, वर्डिंग या कुछ ऐसा, या उसके बाद में न्यूज़ में तो वो उसमें जो करता है एडिटिंग। प्रूफ रीडर जो होता है वो बात का मरहला है। पहले सब एडिटर एडिटिंग करता है या न्यूज़ एडिटर एडिटिंग करता है, और उसके बाद जब खबर बन जाती है तो प्रूफ रीडर यानी तस्दीक करता है, प्रूफ देखता है। प्रूफ रीडर और सब एडिटर में दो अलग अलग चीजें हैं। कोई और तब आजमाई करना चाहेगा कि एडिटिंग क्या है? इसकी अहम बात यह पर एडिटर ये न्यूज़पेपर का अपना नजरिया जो होता है वो एडिटिंग। आपने इदारिये की बात की, वो एडिटोरियल है, हम उस पर बाद में गुफ्तगू करेंगे। फिलहाल एडिटिंग की बात करेंगे। एडिटिंग का मतलब ये है कि जो आप न्यूज़पेपर में आप काम कर रहे हैं, तो कालम है, जितनी जगह है, तो उस न्यूज़ में जो अहम वाक़यात या अहम बातें हैं उन्हीं को शामिल रखना है। जी। इसके अलावा जो है जरूरी है उसे निकाल देना है, इसी को एडिटिंग करना है। हाँ, ये भी एक नुकता है। आगे और कोई बताना चाहेंगे? सर जैसे कोई कारीगर हीरे को तराश के बना देता है, जी जी ऐसे ही एडिटर किसी खबर को खूबसूरत और दिलकश बना के अखबार में जगह के अखबार में पेश करता है। जी जी, ठीक है। और कोई वहां से कोई रिएक्शंस या ख्यालात का इजहार नहीं हो रहा है? एडिटिंग मींस कि इसमें कटिंग होती है, एडिशन होता है, तो देखा जाता है कि किस स्पेस में पेपर में उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई न्यूज़ है उसमें किस स्पेशलिटी है वो डालना है, और कितना कट होता है उसको कट करना है, तो उसके बाद वो प्रूफ के लिए जाता है। उसमें कुछ मिस्टेक्स है उसको भी प्रूफ करके आगे बढ़ती है। आपने बेशतर बातें आपने की हैं। मैं भी कुछ मुख्तसर बयान करूँगा कि मेरी नज़र में तहरीरी मवाद को निखारना, आप ये जो भी रिपोर्टर्स ने आपको खबरें दी हैं, तहरीरी बातों को निखारना, उसकी अहम बातों को नुमाया करना और उसे दस्तयाब जगह में पेश करना, जो भी अवेलेबल स्पेस है उसमें पेश करना, और कारी को खबर पढ़ने के लिए मजबूर करना, ये एडिटिंग होती है। लाइक बेसिकली देयर आर 3 पॉइंट्स कि आप मवाद को निखारें, बेहतर बनाएं, और उसकी अहम बातों को नुमाया करें, यानी लीड बेहतर दें और सुर्खी लगाएं, और जितनी भी जगह अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि आप पूरा सफ़ा एक ही खबर को दे सकते हैं, और जितनी भी आपको अखबार में जगह मुयस्सर है उसके एतबार से, उसके पेश नज़र आपको भी बाज़ वक़्त आपने देखा होगा बिल्कुल रमज़ान के महीने में उसको अखबारों में क्या होता है, बहुत भरमार होती है। यानी फर्ज कीजिए कि मिसाल के तौर पर 20 कॉलम अखबार में जगह है, तो 15-16 कॉलम तो इश्तिहारात में चले जाते हैं और 4 कॉलम। उस वक्त एडिटर्स को बहुत मेहनत करनी, लोग समझते हैं कि काम कम है, लेकिन उन्हें क्या करना पड़ता है कि खबरें तो देना। अगर फर्ज कीजिए कि रमज़ान के महीने में पेरिस का वाक़या हो, हम उस खबर को नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते, देना पड़ेगा, लेकिन उसको कंडेंस करना पड़ेगा, छोटी करना पड़ेगा, और जैसे कि कहते हैं समंदर को कोज़े में बंद करना, तो ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है। इश्तिहार जब जगह कम होती है आपको, तो एडिटिंग की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बयान तो देना है लेकिन कम जगह में देना है, तो आपकी ऐसी सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आती है। डेस्क पर ही जो डेस्क जर्नलिस्ट होता है उसके डेस्क पर ही सब एडिटर्स और न्यूज़ एडिटर्स की खबर एक नई शक्ल लेती है। यानी कुछ तो रिपोर्ट्स देता है, लेकिन जब वो कई मतलब ऐसा होता है कि जब छपती है वो तो बिल्कुल नहीं होती है। बाद वक्त तो रिपोर्टर्स देखकर हैरान हो सकते हैं। समझिए आपकी यानी उसके पॉइंट्स वो तो देगा और चला जाए, लेकिन अगर उसमें एडिटर दिलचस्पी ले तो वो एक बहुत बेहतर और जुदागाना खबर बन सकती है। समझे आप कि यानी इस तरह से एक प्लास्टिक सर्जरी का भी काम करना पड़ता है अखबार के एडिटर को, बिल्कुल शक्ल ही बदल गया। आजकल टीवी सीरियल्स में बहुत होता है प्लास्टिक, आज एक एक्ट्रेस है और कल वो दूसरी आ जाती है, स्टोरी में ये ट्विस्ट लाया था कि प्लास्टिक सर्जरी हो गई। दरअसल एक प्लास्टिक सर्जन भी होता है। अच्छा, गैर जरूरी बातों को निकालना भी एडिटर की अहम जिम्मेदारी होती है।
गैर जरूरी बातें, यानी खासतौर पर प्रेस नोट्स में ऐसा होता है। अभी आपने देखा, आपने बताया था यहाँ से कि प्रेस नोट्स, खबरों के जो वसीले होते हैं, जराए होते हैं, उनका तस्करा करते हुए प्रेस नोट्स का आपने जिक्र किया, और प्रेस नोट्स में बहुत सारी गैर जरूरी बातें हैं। आपने कहा कि अफसाने में अंजाम बाद में आता है और यानी दूसरी बातें पहले होती हैं। प्रेस नोट्स में भी वैसे ही होता है, जब प्रेस नोट खबर नहीं बनते हैं और खबर से पहले की शक्ल में होते हैं तो उन्हें भी आमतौर पर अंजाम आखिर में आता है, यानी जो वो सहाफ़ी नहीं होते, वो दफ्तर में बैठने वाले क्लर्क और बाबू होते हैं, तो वो लोग जो है अपने नुक्ते नज़र से जैसा भी उनकी समझ है बनाते हैं, और जो अहम बात होती है प्रेस नोट में उसे आखिर में लाया जाता है। तो अखबार के जो डेस्क पर बैठते हैं उन लोगों का काम होता है कि वो सबसे अहम बात, प्रेस नोट जिस मकसद से जारी किया गया, जो बिलुमूम सबसे आखिर में होता है, उसे नुमायां करे। ये भी डेस्क की जिम्मेदारी होती है। जो गैर जरूरी बातें हैं उसे निकालना भी एडिटर का काम होता है। अखबारात का डेस्क, खासतौर पर न्यूज डेस्क, एडिटर्स की काबिलियत झाड़ने का जरिया नहीं होना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? काबिलियत झाड़ने का जरिया, यानी मुझे अखबार की डेस्क पर मैं जब बैठता हूँ और खबरें बनाता हूँ तो मुझे काबिलियत झाड़ना नहीं चाहिए, क्या मतलब है? Any ideas? अपने हिसाब से किसी को भी डालनी चाहिए, जो खबर हमारे पास आ रही है उसको रखते हुए उसमें एडिटिंग करना चाहिए, मगर अपने हिसाब से मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना एक्स्ट्रा ना डालना। जी, एक पॉइंट है। सर ये भी हो सकता है कि उसमें जो है अगर आप अपनी ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करें, खातिर जाना, जो न्यूज़ आ रही हैं वो रुक जाएं, आपको देने वाले उस न्यूज़ को आगे ना देंगे, ये मतलब ऑडियंस की डिमांड का ख्याल रखना चाहिए। रिपोर्टर जो न्यूज़ ला रहा है वो कह रहा है कि ये न्यूज़ ज़्यादा अहम है, आप कह रहे हैं ये न्यूज़ ज़्यादा अहम नहीं है। मेरे हिसाब से ये न्यूज़ ज़्यादा अहम है, तो यहाँ पर भी बात होती है कि आप उस काबिलियत झाड़ना। नहीं, वैसे जब रिपोर्टर्स बहुत शरीफ आदमी होते हैं वो जब देते हैं और चले जाते हैं, ज़्यादा इस तरह का इसरार अखबार में नहीं करते। इसमें खासतौर पर गैर जानेदार का रवैया रहना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं जानेदारी रहेंगे तो आप अपनी सलाहियत हो, अपनी जो है तजुर्बे के हिसाब से आप न्यूज़ बनाएंगे तो आगे को पहुँच नहीं पाएंगे जी और जो आपका स्टाफ है वो आपसे जो है बहुत सकेगा जी जी कि आप अपनी सलाहियतों को उजागर कर रहे हैं और लोगों को जो है निगलेक्ट कर रहे हैं। जी जिस मतमय नज़र से मैंने ये बात पूछी थी वो जवाब मुझे दिया है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की थी आप लोगों ने। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ज़बान की बात कर रहा था कि अखबार की ज़बान किस तरह की होनी चाहिए। यानी आप आसान ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए। आप मुश्किल लिखते हैं क्योंकि आपको ज़बान पर उबूर हासिल नहीं, यानी आपकी मुश्किल तहरीर ये बताती है कि आप खुद मसले को ठीक तौर पर नहीं समझे हैं, इसीलिए आप अपनी कमफहमी को मुश्किल अल्फाज या तरकीबों में छुपाते हैं। समझे? अगर आप कोई बात आसानी से समझ जाएं तो उससे आसान पैराए में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद कंफ्यूज हैं तो उसको जो है कुछ ऐसी यानी मुश्किल तरकीबों में ढालने की कोशिश करते हैं कि मेरा काम तो हो जाए, मुझे मेरी तनख्वाह मिलती रहे, चाहे खारी को समझ आए या ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि क्लैरिटी होना चाहिए और आसान जबान होना चाहिए। राइटिंग, एडिटिंग, ट्रांसलेशन वगैरह में हर वक्त आपको ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि मवाद आसानी से कन्वे हो। जरूरी नहीं कि पढ़ने वाला आपकी सतह का, आप बहुत काबिल लोग हैं, आप मानों से बहुत कुछ किया है आप लोगों ने, और लेकिन जरूरी नहीं कि हर जो पढ़ने वाला हो वो आपकी सतह का हो। तो आपके जहन में एक ऐसा खारी होना चाहिए जो जबान की मामूली सुध-बुध रखता हो, और उस मामूली सुध-बुध रखने वाले को भी आपकी खबर समझ में आनी चाहिए। और अगर उस मामूली खबर यानी सुध-बुध रखने वाले को आपकी खबर समझ में नहीं आती है तो आपकी सहाफत बेकार है। जब आप क्यों लिखते हैं? ताकि कोई चीज कन्वे करे, पहुंचाए किसी को, और जब वो पहुंच ही नहीं रही है तो उस तहरीर या तकरीर का कोई मकसद ही नहीं है। क्लियर है? जी, एक बहादुर यारजंग एक बहुत तारीफी शख्सियत रही है। आप में से कितने लोग बहादुर यारजंग से वाकिफ हैं? एनी आइडिया? बहादुर यारजंग ये 1940 के दहक की एक तारीख की शख्सियत है। नहीं? तो मैं मुख्तसरन मेरी मालूमात के मुताबिक बताऊंगा कि जो मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन आज हम देख रहे हैं, इसे तो वाकिफ होंगे।
ٹی وی چینلز پر اکثر چہرہ نظر آ جاتا ہے. تو یہ نظام کے دور میں بہادر یار جنگ نے اس جماعت کی بنیاد ڈالی تھی, اور اس جب تحریک چل رہی تھی دوسری عالمی جنگ, اور اس کے بعد ہندوستان میں سیاسی تحریک, پاکستان کا جو موومنٹ چل رہا تھا, تو اس وقت بہادر یار جنگ ایک بہت اہم لیڈر تھے. اور یعنی محمد علی جناح جو بانی پاکستان تھے وہ بھی ان کی بڑی قدر کرتے تھے, اور نظریاتی طور پر پاکستان میں بہت قدر ہوتی ہے آج بھی. ان کے نام پر کئی یعنی انسٹیٹیوشنز چلتے ہیں اور بہت بڑا مقام ہے ان کا. اور بہادر یار جنگ محمد علی جناح سے اور علامہ اقبال بھی ان کی کافی قدر کرتے تھے. اور محمد علی جناح سے جب پاکستان یعنی اس وقت پاکستان نہیں تھا, سرحد کے پٹھان بھی نہیں سنبھلتے تھے, تو ان کو لے جایا جاتا تھا, کیونکہ ان کا جو زور خطابت تھا, تقریر کی, وہ کمال تھی. ان کی شہرت, ان کی جو خطابت ہے اس سے بہادر یار جنگ, آپ گوگل کر سکتے ہیں یا ان کے بارے میں تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. اور ان کا بہت کم عمری میں, لائک میں سمجھتا ہوں کہ ارلی 40s میں ان کی عمر 39-40 ہوگی, ان کی موت ہو گئی, اور پراسرار موت ہوئی, اور کہا جاتا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا. یہ نظام کے دور کی بات ہے, غالباً 1944 کی بات ہے, جب حیدرآباد ایک الگ ریاست تھی. بہرحال ان کی جو سب سے خاص بات تھی وہ تقریر کی, خطابت تھی. اور اردو یعنی بہت پائے کی فصیح بلیغ, فارسی کا یہی عالم اور پشتو زبان کا یہی عالم, اور اتنی بڑی شخصیت. تو یعنی اس فصیح اور بلیغ شخص کو ایک مرتبہ ایک کانفرنس میں جانے کا موقع ملا. لاتور ایک مہاراشٹر میں جگہ ہے, اور وہاں کا کوئی گاؤں ہے, وہاں پر ایک کوئی کانفرنس ہو رہی تھی, اور بڑے بڑے لوگ مسلم لیگ کے اور کئی جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ آئے اور اپنی تقریریں کی, اور دیہاتی بیٹھ کے سن رہے ہیں. اور جب بہادر یار جنگ کی بات آئی, بہادر یار جنگ نے جب خطاب کیا تو انہوں نے, میں نے سنا ہے کہ اس طرح تقریر, آپ میں سے شاید بیشتر لوگ حیدرآباد کے نہیں ہوں گے, لیکن آپ اس لائن کو برداشت کر لیں کہ بہادر یار جنگ نے جب تقریر شروع کی تو اس طرح انہوں نے کی کہ شہر سے بڑے بڑے لوگ آپ کو لغتاں چھاڑ کو گئی, کیا سمجھ میں آیا, کیا بھی نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو سطح تھی اس دیہاتی کی, لاتور مہاراشٹر کی, اسی کی زبان میں, اسی کی سطح میں انہوں نے ان سے کلام کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سامنے والے کی سمجھ میں آنا چاہیے. اگر نہ آئے تو آپ کی تحریر بھی بیکار ہے اور آپ کی تقریر بھی بیکار ہے. ہمارے دوست ہیں صحافی, انہیں مشکل الفاظ لکھنے کا بہت خپت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ قابلیت نہیں جھاڑنی چاہیے, لیکن انہیں مرض ہے کہ وہ قابلیت جھاڑتے ہیں. اور ابتدا میں جب وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے تو وہ کسانوں کو مزارعین لکھتے تھے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو مزارعین کے لفظ والے ہیں؟ نہیں, لکھنا بھی نہیں چاہیے, بالکل کسان لکھیں. عام تاثر یہ ہے کہ ہندو اخبار کی زبان معیاری ہوتی ہے. ہم سب سوچتے ہیں نہیں وہ اسٹینڈرڈ لینگویج ہوتی ہے ہندو اخبار کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر بس ایک تاثر ہے اور صداقت سے دور ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا, خبروں کا سب سے بڑا سورس ہوتا ہے یہ ایجنسیز جو میں نے آپ کو دی ہے. ہندو میں بھی وہی ہوتا ہے, بیشتر ایکسکلوزیو سٹوریز بھی ہوتے ہیں ان کے, لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے. اور یہاں جو خبر ہے وہ ہندو میں بھی رہے گی, کرونیکل میں بھی رہے گی, ہندوستان ٹائمز, ٹائمز آف انڈیا اور جو دوسرے اخبارات ہیں سب میں وہی رہے گی. اور کہ ٹیم ورک ہوتا ہے, اخبار ہندو کوئی ایک شخص نہیں لکھتا, اور ایک گھر میں دو بھائیوں کے خیالات نہیں ملتے, مزاج نہیں ملتے, پھر اخبار میں کیسے ملیں گے اور ان کی زبان یکساں کیسے ہوگی. یہ ایک ٹیم ورک ہے. ہو سکتا ہے کہ چند اصطلاحات کی انہیں ٹریننگ دی جاتی ہو اور کچھ تراکیب کی ٹریننگ دی جاتی ہو, اس کو چھوڑ کر لوگوں کے درمیان, لوگوں کے طرز تحریر کے درمیان یکسانیت نہیں ہوتی, بلکہ الگ الگ ہوتا ہے. اور یہ تاثر غلط ہے کہ ہندو کی زبان معیاری ہوتی ہے, کرونیکل کی زبان ٹھیک نہیں ہوتی ہے. یعنی باستثناء چند ایک دو معاملات کو چھوڑ کر مجموعی طور پر ایسا نہیں کہا جا سکتا, یا کم از کم میرا ایسا خیال ہے. آپ چاہے پرنٹ میڈیا میں ہوں یا الیکٹرانک میڈیا میں, جب کوئی مخفف یا ایبریویشن آتا ہے, مخفف کا مطلب تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے, مان, ویری گڈ, ABVP, اس طریقے. تو یعنی کم از کم یعنی آپ چاہے ٹی وی میں کام کر رہے ہو, اخبارات میں کام کر رہے ہو, جب کبھی آپ خبر بناتے ہیں, اور خاص طور پر پہلا پیراگراف ہوتا ہے, کبھی بھی پہلے پیراگراف میں یہ جو ایبریویشن ہو, مخفف کا استعمال نہیں کرنا ہے.
क्यों? जो कारी पढ़ते ही पहले समझ जाए, उसके बाद वो इस्तेमाल किया जाए तो कारी को दुश्वारी न पेश आए। सही, यानी ऐसे यानी चाहे कितना भी यानी कॉमन एप्लीकेशन क्यों ना हो, जैसे कि बीजेपी है या ABVP है या WHO है या मानो है, यानी ऐसा कोई ना कोई हर रोज एक कारी या पढ़ने वाला या नाज़िर या देखने वाला ऐसा हो सकता है जो अपनी होश की मंजिल में पहली मर्तबा खबर पढ़ रहा है। और कोई मुसाफिर हो सकता है कि बाहर से आया है और आपकी मुकामी MIM लिख दी जाए, क्योंकि MIM क्या है, हो सकता है कि बाहर का आदमी कोई आए और पहली मर्तबा खबर पढ़ रहा हो, तो ऐसी सिचुएशंस को बचने के लिए और उस नए कारी की सहूलत के लिए यानी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कम से कम एक मर्तबा आप मुकम्मल लिखना चाहिए, खासतौर पर पहले पैराग्राफ में। आजकल प्रेजेंटेशन का दौर है, आप जहाँ भी चले जाएं, यानी आप होटल्स में जाएं या दावतों में जाएं, या दिखावे की दुनिया हो गई है, जो दिखता है वो दिखता है की बात है। तो खबरों का भी यही मामला है। अगर मैं ऐसी खबरें आपको बाजार में लटका दूं और न्यूज़ स्टैंड पे, तो कोई खरीदेगा नहीं। तो इसीलिए जो है इसका क्या मतलब, कोई वजाहत करना चाहेगा कि जो दिखता है वो दिखता है, अखबार के हवाले से कोई वजाहत करना चाहेगा कि इसका क्या मफहूम हो सकता है? सर, जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है जी। और इंसान की फितरत जो उसे अच्छी लगती है वो उसी के पास जाते हैं, उसको जानने की जस्तजू करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो अट्रैक्शन जो होता है बहुत बड़ी चीज़ है कि अपनी चीज़ को अपनी तरफ मुतवज्जो करना, कारी को अपनी तरफ। जैसे सर हेडलाइंस ही होती हैं, तो हेडलाइन भी न्यूज़ वही पढ़ी जाती है जिसकी हेडलाइन जो है वो अट्रैक्टिव होती है। जी। तो अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन की बात की आपने, सही कहा कि हेडलाइन एक अट्रैक्ट करती है, और कोई चीज अट्रैक्ट कर सकती है? पेज लेआउट, कलर्स, वेरी गुड, कलर्स, पेज क्वालिटी की मैटर करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई सफाई, जी बिल्कुल सही। तो यानी जैसे कि आपने कहा हेडलाइन है और सब हेडलाइन है, सब हेडिंग्स है, यानी और कुछ ऐसा आप उसे नुमाया कर सकते हैं, जैसे कि तस्वीर के जरिए। तस्वीर है, तस्वीर भी एक चीज़ है, और बॉक्स है, कोई अहम खबर है उसे बॉक्स है और उसे नुमाया करें आप, और कुछ इंट्रो बनाए, यानी जो मोटे मोटे जली हरूफ में दिखें आप, ये भी कोई अट्रैक्शन। ये सब डेकोरेशन की चीज़ें, अखबार को डेकोरेट सजाकर पेश करना पड़ता है। अगर मैं इस तरह दे दूँ तो कोई नहीं खरीदेगा, तो ये डेकोरेशन की चीज़ है, और इसे सेटिंग कहते हैं। हरफ आम में अखबार आपने सेटिंग करते हैं, और ख़ास तौर पर इसमें जो चीज़ अट्रैक्ट करती है, जो बैनर सुर्खी होती है, यानी स्टैंड पर चले जाएं आप, अखबार जहाँ लगे होते हैं, तो सबसे पहले उसे वही दिखता है कि उसकी ऊपर यानी सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है। एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि मैं जब अखबार में काम करता हूँ, और इब्तिदा में शुरू किया था मैंने, इससे पहले मैं हमारी एक फैमिली बिजनेस था, एक छोटी सी रेस्टोरेंट थी, और उसको मैं बैठता था, और वहाँ के जो मुझे तजुर्बा हासिल हुए, मददगार साबित हुआ आइंदा ज़िंदगी में भी। तो वहाँ मैं देखता था, मैं सुबह होटल खोलता था 4-5 बजे, तो जो है एक कई ऐसे असहाब थे, वो आते थे, उनके जेब में गालिबन 10 रुपए का नोट होता था, वो आते थे, पहले फजर की नमाज पढ़ते थे, और उसके बाद आते थे कि हमारे होटल में चाय पीते थे, 3-4 रुपए की चाय होती थी उस ज़माने में, और सिगरेट पीते थे। उनके पास मुश्किल 2 रुपया बचता था, और वो सिर्फ एक अखबार खरीद सकता था उससे। तो और सामने हमारे अखबार बिकते थे, और वो जाते थे, तो मैं देखता था कि लोग जो है उसमें से एक ही अखबार खरीदते। तो मैंने गौर किया, और जब मैंने अखबार में अपनी ज़िंदगी शुरू की, तो मेरा मतले नज़र वो आदमी होता था जिसके जेब में 10 रुपए थी, और मैं चाहता था कि वो आदमी जब स्टैंड पर आए तो मेरा अखबार खरीदे, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 रुपए है। हालांकि 2 रुपए की कोई वैल्यू नहीं, वो 12 रुपए लेकर के निकल सकता है, लेकिन नहीं निकलता, और अगर उसके पास पैसे हो तब भी वो अमूमन ज़हनियत ये होती है वो एक ही अखबार होता है। तो जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है वो सब बैनर सुर्खी जो होती है, जैसे पेरिस हमले हुए आजकल के हवाले से, और या कोई और खबर जो भी ऐसी होना चाहिए कि वो मजबूर हो जाए उसे खरीदने के लिए और उसके बारे में मजीद जानने के लिए। अभी सेटिंग बैलेंसिंग की बात की, सेटिंग अखबार में बैलेंसिंग होती है, अखबार को बैलेंस करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ये एक सफ़े अव्वल है आपका, तो यानी यहाँ पर मैं आपको एक तस्वीर दूँ, यहाँ पर तो जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, तस्वीर, बॉक्स, जो कुछ और
बड़ी बैनर सुर्खी है, तो यहाँ पर कोई एक तस्वीर है, तो यहाँ भी कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए, या तो बॉक्स हो सकता है, या कुछ आप टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं, या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रूटीन टेक्स्ट है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। ये बैलेंस, आप घर भी बना लें, आप कोई घर बनाते हैं तो यहाँ एक कमान है तो वहाँ एक कमान है, तो इस तरह एक बैलेंसिंग होनी चाहिए, समझ गए? तो इसके अलावा बैलेंसिंग कई तरह की होती है, 2-4 चीजें हैं कि एक फॉर्मल बैलेंसिंग होती है, जैसा कि यहाँ दिया है आपने कुछ, यहाँ कुछ एक दिया है और यहाँ कुछ एक दिया, ये फॉर्मल बैलेंसिंग है, लेकिन ये आइडियल बैलेंसिंग नहीं है मेरे हिसाब से। अखबार के सफे पर आप जब काम करते हैं तो यहाँ से ऐसे ही ठीक है, जो सबसे आइडियल बैलेंसिंग है वो होती है डायगोनल बैलेंसिंग। डायगोनल बैलेंसिंग का मतलब ये है कि डायगोनल बैलेंसिंग का मतलब ये है कि आप खुद आजमाएं कि आपकी जो आई है, आंखें हैं, वो नेचुरली यहां से यहां ट्रैवल करती है, यहां से यहां नहीं करती। आप एक नजर खुद देखिए और गौर करें और बताएं कि मेरा मुशाहिदा सही है या गलत। आप यहां से यहां देखिए, आप आसानी से ट्रैवल करती है, और यहां आपको एफर्ट लगाना पड़ता है कहीं ना कहीं। आप महसूस किया आप? तो ये होती है डायगोनल बैलेंसिंग। तो हर अखबार में आप देखें, खासतौर पर अंग्रेजी अखबार में इसका लिहाज रखा जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ एक फोटो आती है, यहाँ कुछ बॉक्स, ये डायगोनल बैलेंसिंग के फॉर्मेट में दी जाती है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है फिक्स के रोज ऐसा ही हो, लेकिन एक आइडियल है, और जो अच्छा न्यूज एडिटोरियल पेज जो सेट करता है वो इस बात का ख्याल रखता है कि डायगोनल बैलेंसिंग दी जाए, और कहीं ना कहीं जो है सफे को बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन जो पिक्चर्स का यूसेज है, यहाँ एक तस्वीर, यहाँ कुछ एक तस्वीर, यहाँ एक बॉक्स, और कुछ ऐसी जो इंटरप्ट करती है टेक्स्ट को, ऐसी चीजें देना चाहिए, और उससे बैलेंसिंग कहते हैं, और इससे अखबार का सफा खूबसूरत होता है। तो बुनियादी तौर पर एक फॉर्मल बैलेंसिंग होती है और एक डायगोनल बैलेंसिंग होती है, और डायगोनल बैलेंसिंग नेचुरल है और आइडियल है, और उसे कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसा ही। तो मैं अभी 4 कॉलम की कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था, सहाफती शिर्क की मैंने बात की थी। सहाफती शिर्क याद है ना? तो वो आमतौर पर 4 कॉलम की इस तरह की दे देते हैं, 8 कॉलम है तो ये, मगर मैं इसे शिर्क समझता हूँ सहाफती। तो 4 कॉलम कभी नहीं होनी चाहिए, आपको फैसला करना ही पड़ेगा कि आपके खारी के लिए ज्यादा बेहतर खबर कौन सी है। तो ये आइडियल तरीका मेरी नजर में नहीं है, जैसे यहाँ पर है, ये 4 कॉलम में नहीं है। हालांकि एतमाद है और असदुद्दीन मजलिस का अखबार है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की खबर अहम नहीं है, बल्कि ये खबर अहम है जी। देखिए यहाँ पर बैलेंस, डायगोनल बैलेंसिंग आपको नजर आ रही है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ है, कहीं ना कहीं है, और यहाँ बैलेंसिंग है। देखिए ये इन फोटोज को ये फोटो बैलेंस करेगी, इस फोटो को ये फोटो बैलेंस करेगी, और इन इश्तिहारात को ये बैलेंस करें। यानी अखबार में यहाँ भी इसको ये बैलेंस करना है, और यानी अखबार में कहीं भी ड्राई एरिया नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होना चाहिए, उससे आदमी की वहाँ नजर जाती है, और यानी पढ़ने के लिए मायल होती है। और ये सब सजावट की चीजें हैं, घर में जैसे कि फ्लावर वॉल्स होते हैं, या और आप लोग खवातीन बता सकती हैं कि सजावट की क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये सब अखबार की सजावट की चीजें हैं। क्या होती है घर में सजावट की? तो ये हमारे फ्लावर पॉट्स में ऐसे दिया, तस्वीरें और दूसरी चीजें। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा, यानी इसकी जो अखबार की सजावट की जो अहमियत है, मैं जियोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, जियोलॉजी इल्म अर्जिया तबकातुल अर्ज कहते हैं। तो उसमें मुझे बताया गया कि हीरा जो होता है, डायमंड और कोयला जो होता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन तकरीबन मिलता जुलता है, बल्कि वही होता है। आप में से कोई केमिस्ट्री पढ़ा है? कोई नहीं?
तो हीरे और केमिकल का हीरे और कोयले का जो कॉम्बिनेशन होता है, केमिकल फॉर्मूला वही होता है, लेकिन फर्क होता है तरतीब में। यानी वही चीजें हैं, लेकिन जो तरतीब है उसकी चीजें जो जिस ऑर्डर में है वो अलग होती हैं। उसकी वजह से जो तरतीब बेहतर होती है तो वो हीरा बन जाता है, और तरतीब बिगड़ती है तो वो कोयला बन जाता है। तो तरतीब कितनी जरूरी है, तरतीब यानी ऑर्डर, या अब हमारी जिंदगी में कह रहे हैं हम डिसिप्लिन। तो इसकी मिसाल एक ऐसी भी दे सकते हैं कि आप निकल जाएं मछली बाजार में या तरकारी सब्जी मंडी में निकल जाएं तो आपको क्या नजर आता है? सब्जियां, शोर और सॉरी भीड़ नजर आती। कोई यहाँ ठहरा हुआ है, कोई यहाँ भाव ताव कर रहा है, कोई यहाँ। और अगर आप किसी फौजी परेड में चले जाएं 15 अगस्त 26 जनवरी राजपथ पर दिल्ली में, क्या होता है? ऑर्डर में जाता है। ये भी लोग भी इंसान है, वो भी इंसान है, लेकिन ये लोग तरतीब में हैं और वो बेतरतीब है। वो लोग तरतीब में है इसीलिए लोग उन्हें आकर देखते हैं, वो एक खास चीज है। अब कोई टिकट लेकर आप भीड़ मंडी की भीड़ देखने के लिए तो नहीं जाएंगे। तो इसी तरह कहते हैं। और एक मिसाल, नमाज में जो फर्ज नमाज होती है वो जो है तरतीब में है, और जो सुन्नत नमाजें होती हैं वो बेतरतीब, इस तरह की। तो एक शेर मुझे बहुत पसंद है इसी हवाले से कि जिंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान। बॉडी वही है लेकिन उसकी तरतीब बिगड़ गई है तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है, लेकिन चीजें तो वही। तो तरतीब की ये अहमियत है। किसका शेर है? आप मैं समझता हूँ शेरी ज़ौक़ रखते हैं, चकबस्त, लेकिन बहुत अच्छा शेर है और साइंटिफिक शेर है। और मैं समझता हूँ 150 साल पहले लिखा है। कोई उर्दू अदब की तालिब इल्म रहे हैं आप? नहीं है तो तालिब इल्म, लेकिन इधर आपसे थोड़ा टकरा के कहीं कुछ सवाल ना हो। जी आप रहे तो आप सुना है ये शेर? किसका है? चकबस्त का। ब्रिज नारायण चकबस्त। एडिटर का काम न सिर्फ मवाद को बेहतर बनाना बल्कि सफ़े को भी संवारना है। जिस तरह की मैंने बैलेंसिंग की बात की, और यानी इस तरह से कहा जा सकता है कि सूरत और सीरत दोनों अहम है। यानी अखबार का जो कंटेंट है वो भी अहम है, और जो उसकी शक्ल है, और हर मामला में ये बात पेश नजर रखनी चाहिए कि सूरत भी बेहतर और सीरत भी बेहतर। लेकिन बाद वक्त क्या होता है, हमने बड़ी बड़ी बातें तो कर ली हैं, बैलेंसिंग वगैरह वगैरह, लेकिन जब इश्तिहारात आते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और इश्तिहारात भी जरूरी है, क्योंकि इश्तिहारात से क्या होता है? अखबार फायदा होता है, हाँ, पैसा आता है इश्तिहारात से। हम खबर दें, कोई पैसा देने वाला नहीं है, मनमोहन सिंह, मोदी या पेरिस वगैरह कुछ नहीं, लेकिन आपको मखदूम ब्रदर्स पैसा देगा या इस तरह की चीजें। पैसे का दौर है आजकल, और मनी टॉक्स कहते हैं, मनी रूल्स। तो जब वो आ जाते हैं तो खबरें धरी की धरी रह जाती हैं। अखबार का जो एडिटोरियल सेक्शन या डेस्क होता है जहां पर मैं काम करता हूँ, वो दरअसल अखबार का कंट्रोल रूम होता है। यानी उसका तमाम शोबों से रब्त और तालमेल जरूरी है। अखबार का मालिक क्या चाहता है, यानी उसकी पॉलिसी क्या है। कई मतलब ऐसा होता है कि अखबार का मालिक आपको खुलकर नहीं बोलता, इशारों में बोलता है। उसकी जबान समझनी पड़ती है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता, बोलकर ऑन रिकॉर्ड होना नहीं चाहता। तो आपको इस बात का यानी ये जानना चाहिए कि अखबार का मालिक क्या चाहता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि अखबार कितने सफ़हात का है। बालों का ऐसा होता है कि फेस्टिवल्स होते हैं तो अखबार की सफ़हात कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि खबरों का फ्लो कम रहता है या किसी न किसी पॉलिसी की वजह से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अखबार कितने सफ़हात का है, कितनी जगह है, यानी इश्तिहारात कितने हैं और हमको कितनी जगह दी जा रही है खबरों के लिए, और डेडलाइन क्या है ये मालूम होना चाहिए आपको कि कितने बजे आपको अखबार देना है। बाद वक्त होता है कि मशीन खराब हो जाती है, प्रिंटिंग मशीन, तो वो लोग कहते हैं कि साहब आपकी मशीन खराब है, इससे पहले दीजिए वरना रिस्क है, अखबार नहीं छप सकेगा। और वो कुछ यानी कोई मेंटेनेंस का काम है, कोई चेन्नई से इंजीनियर आने वाला है, जल्दी है। तो बहरहाल बाद वक्त ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि डेडलाइन से पहले आपको अखबार देना पड़ता है। कोई खास वक्त मुक़द्दस रातें आती हैं, शब कद्र हो या शब बारात वगैरह, तो उस वक्त क्या होता है, मुलाजिमीन चाहते हैं, रमज़ान में लोग चाहते हैं कि जल्दी चले जाएं। तो ऐसे मौक़ों पर जो है
आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब अखबार का प्रिंट देना है, और ये आपको मालूम होना चाहिए कि खबरें क्या आने वाली है। यानी कोई रिपोर्टर कहीं गया हुआ है, कोई जलसा हो रहा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई क्राइम हो गया है, वहाँ पर कोई रिपोर्टर गया हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि खबरें क्या आने वाली हैं, कहाँ से आने वाली है, कोई रिपोर्टर्स देने वाला है या आपको कोई पर्सनल सोर्स है, और कितने लोग ड्यूटी पर मौजूद हैं। बाद वक्त ऐसा होता है कि किसी की यानी कोई अचानक किसी की तबीयत खराब हो गई, वो चला गया या कुछ हो गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कितने लोग ड्यूटी पर हाजिर हैं और कितने लोग नहीं हैं, और उनका मुतबादिल इंतजाम आपको करना पड़ता है या आपको वाकिफ होना